गुड ये आफ्टरनून। वही है ना Basically जिसकी what fundraise. basically what this company does, whatever sales they do or whatever material they show that we have sold is actually not sold, is actually given to some of their counterparty, right? So what they do, they have never received any cash. Suppose you have a shop and you suppose are selling goods worth of say 10 lakh rupees in 1 year, correct? So at the end of 1 year, you are expected to receive 10 lakhs. Yeah, absolutely. Absolutely. Now, at the end of 1 year, you are minus 4 lakhs. 10 लाख जो आना था वो तो छोड़ो, आपकी जेब से 4 लाख और लगा हुआ है. तो लेकिन when you said that he is financing his receivables, बता रहा हूँ वो पार्ट नहीं समझा मेरे को. बता रहा हूँ. So whatever amount you are receiving is actually your receivables which is not getting cleared, is actually an inventory which is not getting cleared. Right? So what are you doing? If your receivable accounts gets bloated, so the analyst will catch this and they will put a question mark on your company why the receivable account is getting bloated. So what they do is small amounts of the receivables they are selling it to an asset reconstruction company. Then asset reconstruction company को आपने 100 रुपए का रिसीवेबल बेचा तो वो आपको 100 रुपीज नहीं देगा. वो बोलेगा मैं आपको 70 दूंगा या 60 दूंगा, बाकी का मैं जानू, मेरा काम जाने, और मैं उस जो पार्टी आपको पैसा नहीं दे रही है मैं जाके उससे पैसा ले लूंगा. तो the asset reconstruction, bank selling the bad loans. these are not loans, these are receivables. जो इसने सेल्स किया है, सेल्स आर बोगस. जिसको भी सेल्स किया है, either the quality is bad, right? Either the stuff is not accepted by the customer, so the customer is not paying at all. So what they are doing is, slowly over the years, what they have started doing is they are giving away a good portion of the receivables to asset reconstruction companies, right? Now banks also work like an asset reconstruction company. Suppose I have to take 100 rupees from Sunil ji, just for example, correct? Now Sunil ji is not paying me my money. So what I do is I don't muddle my head over there. I ramp up Vijay ji, who is an asset reconstruction company. Vijay ji says I'll give you 60 rupees upfront. बाकी फिर मैं जानू सुनील जी जाने आप फ्री, राइट? I think वो CFO by PAT में दिखता है वो. What you are saying is if you look at CFO by PAT minus में आता है वो. हाँ. अब now what is happening? Now I am getting 60 and I had to get 40. So there is a loss of 40 rupees on my books. So to hide that loss, if I put that loss into the P&L, my profit will drop. If my profit will drop, my stock price will go down. So to hide that loss, what he is doing, he is showing faster sales, and what he is doing a preferential and warrants continuous dilution. तो जो डायल्यूशन से पैसा आ रहा है उससे मैं अपना वो जो लॉस है 60-100 का डिफरेंस उसको राइट ऑफ कर रहा हूँ. तो रिटेलर को पता भी नहीं चलेगा, नोवेस रिटेलर को कोई समझ में भी नहीं आने वाला. He is playing a smart game. So what he has to do, he has to get money again and again the business. That why how he can do, either sell his receivables to the bank, right, or continuous dilutions, right, or sell the receivables and get money as a loan from the bank, which he is showing you in your cash flow from operations. Basically इस business में कुछ है ही नहीं, business totally फर्जी है. बट एक ही मेरे को मतलब आई मीन नंबर वाइज मतलब वो अपीयर होता है कि स्टार्टअप है, महान है, इसलिए रिसीवेबल है, लेकिन पीछे से पूरा नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं. बिजनेस टोटली फर्जी है, इसमें सिर्फ फ्लोट का खेल हो रहा है और कुछ भी नहीं है. बिजनेस इज 100% नहीं 1000% फर्जी. The numbers which have been shown to you, until unless he will not grow fast on the top line, how the hell you are going to classify it as a startup? Right? Because if he is getting preferential, तो अरे सर वो छोड़ो, वो सब मैनेज होता है, वो प्रेफरेंशियल वारंट वो सब मैनेज होता है, वो सब छोड़ो. उस कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ कि क्या है. नंबर आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है. मेरे पास 100 यूनिट है बेचने के लिए, करेक्ट? मैं वही 100 यूनिट आपको बेच रहा हूँ, वही 100 यूनिट विजय जी को बेच रहा हूँ, वही 100 यूनिट राकेश जी को बेच रहा हूँ. तो मेरी तो 300 की सेल हो गई. पैसा मेरे को किसी ने देना नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैंने माल ही डिलीवर नहीं किया हो.
And he says, the auditor says, the revenue recognition policies are prone to error, that your revenue may not be recognized in the current period properly. So what they are doing is sales, which was supposed to, suppose I have a contract of 100 units to deliver to Vijayji, correct? Now I say, Vijayji, what I am doing is I will deliver the user products after 2 months, but I am making the bill now. So on my books, I have recorded the sales, but after 2 months, I am not delivering the goods to Vijayji. I am doing a contract with Rakeshji. I delivered to you the goods after 3 months. So I got sales. Okay. Then what will happen? I will deliver 20% goods to Vijayji and 10% goods to Rakeshji. तो दोनों बोलेंगे तुमने तो मेरे को बिल तो कर दिया, माल तो दिया नहीं, तो why should I pay you? Why should I pay you? So then what he is doing? He is going to the asset reconstruction company. यार ये मेरे को पैसा नहीं देता है, आप उससे पैसा उसको दो, मारो डंडा उसके सर पे और पैसा उससे ले लो और मेरे को फ्री करो. ये चीज होगी. तो जो डिस्काउंटेड ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? आपने वो भी एक शेयर किया था. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटेड ट्रेड रिसीवेबल्स? वो भी विजय जी समझाएंगे. मतलब क्या डिस्काउंट दे दिया क्या? कम पैसे में सेटलमेंट कर लिया ऐसा? वो है नॉर्मल बिजनेस में. कितनी बार अभी ऐसे भी होता है. अभी इसने समझो सेल किया और दूसरे पार्टी को एक्चुअली पैसा दे नहीं सकता है वो, तो वो कितनी बार क्या होता है, वो कंपनी आपको भले पेमेंट करेगी बट वो इंटरेस्ट लेगी. ऐसे भी होता है. और जैसे सर बोल रहे थे, ये बोगस सेल्स के हिसाब से भी वो खाली दिखाएगा और उसे अपना लॉस वहां पे डाल के ये डिस्काउंट कर देगा. ये जो सेल्स है ना, अभी मैंने सुनील जी को 10 लाख की सेल करी, मेरे को सुनील जी से 10 लाख देना है. अभी सुनील जी मेरे को 10 लाख दे नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ डेब्ट इन हिज कंपनी और व्हाटएवर द रीजन. करेक्ट. आई गो टू विजय. विजय जी इज ARC कंपनी और अ बैंक. I tell Vijay ji, you take your cut of 2, 3, 4, 5% and you give me the money and you keep on taking money from Sunil ji. So I am selling my receivables to the bank. हाँ, बट लेकिन फिर भी कैश फ्लो नहीं आ रहा है ना, वो तो फिर भी डबल हो रहा है. तो कह रहा हूँ ना, I have sold my. तो कैश फ्लो जनरेट ही नहीं होगा ना सर. कैश ही नहीं है तो कहाँ से कैश फ्लो आएगा? है ही नहीं. नहीं, when if he is going to the bank, मतलब जो भी ARC पे जा रहा है, ARC तो इसको दे रहा होगा ना. सुनो वो भी पेपर पे ट्रांजैक्शन हो रहा है. एक मिनट रुको ना. 1 रुपए, 100 रुपए का 100 रुपए, लाख रुपए का बिल है तो लाख का लाख नहीं आ रहा ना, उसको 60,000 आएगा, 80,000 आएगा, 70,000 आएगा. एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा. नेगेटिव है इसका कैश. अरे एक सेकंड सर, गिव मी 1 सेकंड. कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ सर. So let's take Rakesh ji in the starting. Rakesh ji, कलर ही व्हाइट हो गया. ठीक है. Rakesh ji did sales of 10 lakhs to Sunil ji. Step 1. Now Sunil ji is not able to pay. So what Rakesh ji wants to do is, Rakesh ji wants money. So what Rakesh ji is doing? I'll go to the bank. So the bank is Vijay ji. So bank Vijay ji pays Rakesh ji 95 rupees out for this, sorry 95% out of this 100%. 5% बैंक ने अपना कमीशन काट लिया, ये जो भी 5% 7% जो भी हो. So now what has happened? Rakesh ji has got 95%, which is 9,50,000. But Rakesh ji has to show good amount of sales. Until and unless you are not showing good amount of sales, faster growth of sales, your stock price is not going to be sustained. To show this good amount of sales, so whatever meager money Rakesh ji is getting, he is putting all this money into something called inventory. That is why in cash flow will always be negative. Because ये राउंड एंड राउंड ये चक्री चलती रहेगी. So every time Rakesh ji is pushing sales, which is a bogus sales, he is not getting the money. Then with the new sales, he is going to the bank, he is taking a cut of 4%, 5%, 4%, 5%, whatever the cut is, 4%, 5%, 7% का मैंने काट लिया. बैंक से पैसा वापस आया, वही पैसे से मैंने फिर इन्वेंट्री बनाई, वही पैसे से राकेश जी ने फिर सेल करी. So that is why bank is not losing out.
मतलब सर बैंक बैंक इज छोटा सा यूज बात, करेगा इसमें। अरे सर बैंक इज रूटिंग ना, बैंक बोलता है कि जो जिस पार्टी को राकेश जी ने सुनील जी को सेल्स किया, बैंक बोलता है मैं एआरसी कंपनी हूँ, मेरे पास आ गया, तो बैंक ने जाके सुनील जी का एसेट गिरवी रख लिया। बैंक को तो अपना पैसा चर्न करना उसका है। उसका पैसा कभी नहीं जाता बैंक का या एआरसी का, वो उसके अगेंस्ट में उसको अपने नीचे ही रखते हैं। हाँ, तो बैंक में जाके सुनील जी का जो वैसे सेल्स वन सेल्स टू जो भी है, बैंक अपना वो उनका एसेट को मॉर्गेज करता चला गया। और बैंक को हर बार 2-5%, 2-5%, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। जो सर बट ये मैंने आप जब भी ये बिल डिस्काउंटिंग का पीरियड ओवर होता है, इट इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकवर, नो तो नो ये नो 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 टोटल नो नो से नो 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 नहीं, नो नो मैं नो अगर नो नो। डिस्काउंट इट कैन बी अरे एक्सटेंडेड एआरसी ऑल्सो। को अगर सर सेल किया तब मेरा हेडेक नहीं है, सर अगर मैंने हुंडी लिया है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर हाँ हुंडी राकेश लिया जी, है लेकिन और उसका डिस्काउंट एक्सटेंड दिया है। एक्सटेंड भी होता है, एक्सटेंड भी होता है ना, वो सर दिक्कत अच्छा, हो जाएगा। ओके 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 सर बैंक ओके। से लोन एआरसी को मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, बट बिल अरे डिस्काउंटिंग सर में आप भी मेरा हमेशा मेरे साथ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मेरी सुन भी तो लो। हाँ सॉरी आप सॉरी, यस। आप मेरी सुन भी तो लो। हाँ जब जी, हाँ हम जी। कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंक किसी को लोन देता है, तो इन अ पीरियड ऑफ 90 days इफ द पर्सन इज नॉट पेइंग द लोन, so they classify the loan as एनपीए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एनपीए हो जाता है, राइट? फॉर द बैंक इट विल बी, हाँ, फॉर एनीथिंग, फर्स्ट अरे बकेट, सेकंड बकेट, थर्ड बकेट, यस यस फॉर एनी फॉर एनी एनबीएफसी, आई थिंक फॉर बैंक, फॉर एनी एनबीएफसी। यस यस यस। तो तो बैंक अरे कोलाइड सर करते हैं कि भाई आपका हम। अरे सर अच्छा, बोलने तो दो, मेरे को पहले बोलने तो दो। ओके ओके। NBFCs have multiple companies, multiple tie-ups, multiple links, right? Now Vijay ji is an NBFC. Sunil ji goes to Vijay ji and takes a loan of say 1 crore. Now Sunil ji is not able to pay the loan of 1 crore, right? Now Vijay ji will ramp up Rakesh ji, his colleague or his other sister concern company, and on the 85th day give another loan 1 crore to Sunil ji, and Sunil ji will pay back loan number 1. हाँ, वो टोपी घुमाया, So वो समझा। again, that second loan will again be classic, can go on for 90 days, हाँ क्योंकि वो एनपीए में नहीं जाएगा। एनबीएफसी ये एडजस्टमेंट करते हैं। 1 सेकंड प्लीज। हाँ, नहीं टोपी घुमाएगा, घुमाता रहेगा, that's it। वो घुमाता रहेगा। तो यहाँ पर भी तो ये घुमा ही रहा है, और कर क्या रहा है, पागल ही तो बना रहा है। यहाँ हाँ पर भी जी, तो ये घुमा ही रहा है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ तो जैसे हाँ ही जी। उसको, अगर आपको लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दूसरे एआरसी से घुमा देगा। एआरसी की कमी है क्या? हर गली कूचे में एक एआरसी बैठा है। नहीं, एआरसी को बेच दिया तो खत्म, एआरसी को देने से एआरसी झड़े, बट ये आप जब अरे डिस्काउंटिंग करते सर, हो मैं तो तो आपका पॉइंट का जवाब दे रहा हूँ। अगर एआरसी आके बोलता भी है ना, तो वो दूसरे एआरसी से पढ़ के पहले एआरसी को सेटल कर देगा। हाँ, आज की yes, तारीख में आज की तारीख में बॉम्बे जैसे शहर में जितने गली गूचे में जितने गुंडे लोग बैठे हैं, वो सारे एआरसी हाँ काम ही वो सब। एक्सटॉर्शन का काम है। So basically, the sales in this business is totally bogus. It is not a true sales because cash is never going to come. और जितना भी आप एआरसी से या बैंक से कमीशन दे के या अपना एक कट उनको दे के जो भी पैसा आपका मिलेगा, वो आपका फिर इन्वेंट्री में चला जाएगा, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सेल्स बढ़ानी है। हाँ, वो ठीक, वो समझा। That's it। सर एक एक क्वेश्चन है अभी अभी नाउ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कैसे इसको डिस्टिंग्विश करें। जैसे एक आपने एक बहुत अच्छा वो क्लियरली डाला है जहाँ पे वो बोरोविंग्स में दिख रहा है, जो अंडरलाइन किया है आपने, कि हाइपोथिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड बुक डेट एंड रिसीवेबल्स ऑफ द कंपनी बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो जो बोरोविंग्स का हाँ जो हाँ, हाँ। तो तो मतलब ये इसको जो बैंक लोन मिल रहा है ना, इसलिए तो मिल रहा है कि इसने रिसीवेबल बेच दिया। नहीं नहीं, तो ये जो लाइन जो है, ये जो बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, कंपनीज विल से टू फंड माय वर्किंग कैपिटल आई एम टेकिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल और बोरोविंग्स। ये जो लाइन है, दिस इज लाइक अ एक्सेप्शन, दिस इज नॉट द नॉर्म। सो मतलब हाँ अगर कोई कंपनी कर रहा है ये, तो बाय लॉ हाँ ही इज सपोज टू राइट दैट ना, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। तो हाँ, मतलब तो ये ये कर रहे हैं एक ना। रेड फ्लैग ढूंढने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये ये दिखे मतलब एक रेड फ्लैग है। अरे सर, ये अपना रिसीवेबल बेच रहा है। आया नहीं आया उससे उसको कोई लेना देना नहीं, ये अपना रिसीवेबल बेच रहा है। हाँ और हाँ, ये तो पता है मतलब क्या कर रहा है? बेच रहा है मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, या उसको डाउटफुल है। अरे उसको डाउटफुल, क्योंकि जितनी स्पीड से आपको सेल्स दिखा रहा है, जो क्रैंकशाफ्ट ये बेच रहा है, फॉरेन एक्सपोर्ट कर रहा है, वो सारे के सारे फर्जी है। नहीं 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 सर, मेरा मेरा मैं वो बालू फोर्ज कंटेक्ट समझ गया।
नाउ आई एम सेइंग लेट्स से मैं कोई दूसरा स्टार्टअप देख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं दूसरा स्टार्टअप देख रहा हूँ, उसका भी ऐसे सेल्स ग्रोथ हो रहा है। ऑफ कोर्स वन डेफिनेट थिंग इज आई विल से ओके, उसका मैं सीएफओ बाय पैट देखूंगा, ऑब्वियसली आई नो कि मनी इज कमिंग बैक और नॉट। सेकेंड चेक व्हेन आई एम सेइंग, व्हेन आई एम इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि भैया ये भी बालू फोर्ज का भाई तो नहीं है, तो उसके एक लिए मैं एक पूछ एक, रहा था कि एक भाई दिखाऊं मैं और मेरे, हाँ। एक भाई दिखाऊं उसका और इसी जो लो No, ये भी भाई Kapilji, what you're saying is bill discounting a fraud? No, bill discounting is a genuine thing. They use it to do a fraud. I'm not sure whether I answered your क्या question. बात है यार, राकेश जी के तो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना सुपर्ब होते हैं। दे यूज इट टू डू फ्रॉड। वाओ, मजा आ गया। नो सीरियस, नहीं, not necessarily, Rakesh ji, not necessarily. Sometimes they go in for a crunch and they do bill discounting that time also. चलो suppose I had the data only till 2018 जहां इसका फ्रॉड आया था। This is the data which I have. So what is the amount of profits which I have is around 2089 crores. Can you see? I just added up the numbers. Clear? Yeah, yes. 2089 crores. What is the amount of cash flows I have? Only 700 crores. बाकी का ट्रेड रिसीवेबल में अटका हुआ है या तो आया ही नहीं कभी। और या ट्रेड रिसीवेबल फर्जी है। What happened in 2018 to PC Jewelers? You all know. छुट्टी from 600 went to 0. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। ये नया सीखने को मिला, ये झोल कैसे कर रहे हैं, फर्जी क्यों है। तो ये लेकिन जो प्रेफरेंशियल कर रहे हैं, जो भी इसको बड़ा इन्वेस्टर मिल रहा है, वो उसको ये नहीं दिख रहा क्या? मतलब उसको सब दिख रहा है। उसको ऐसी कंपनी चाहिए जिसको रिटेल डरेगा हाथ ही लगाएगा। उसको फ्लोट कॉर्नर करना है, उसको अपना पैसा बनाना है। कचरे में भी पैसा बनता है, वो कीचड़ में ही फूल कमल खिलता है, कहावत है ना। अच्छा, तो जो टाइप के प्रेफरेंशियल डाइल्यूशन क्योंकि कर रहा है, वो भी मतलब एक तरह से मिला हुआ है प्रमोटर के साथ, तो उसको भी वो एग्जिट देने वाला है ऑब्वियसली। आपके पास 1000 करोड़ रखा है बैंक में और आप उसके पोर्टफोलियो में है, तो आप भी कर सकते हो। बड़े लोगों का खेल है। रिटेल को क्यों जाके फंसना है? एंड में रिटेल नहीं फंसना है। नंबर्स अच्छे हैं, ब्रेकआउट अच्छा है, एंड में ये सारा माल रिटेल के पास ही आना है और फिर जिंदगी भर बैठ के रोना है। तो ऐसी जगह जाना है क्यों? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। The statement of Charlie Munger, all I want to know is where I'm going to die, so I never go there. This is a place retail is going to die. Today or tomorrow, day after 2 days, 5 days, I don't know. But now you go and look at the chart. Charts are good. Now you look at the numbers. Numbers are wow. Top line growth is good. Wow. But there is no cash because the top line is totally fuzzed. It's fraud. This is like disaster in happening. This is like disaster. वो लावा फूटने वाला है ना. This is like that volcano burst out. सर इसमें दूसरा काम भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत होता है इसमें। हाँ, होता है ना मार्केट में, जगह मार्केट में। हाँ, तो उनको क्या ऐसी कंपनियां ही चाहिए होती है जहां से ये सब काम रूटिंग हो सकती है, जहाँ पे लोग नेमिंग हो। इलेक्शन का टाइम है, आप लोग समझदार हो, मैं क्या बोलूं अब। हाँ, बाकी राकेश जी सबके साथ है। ठीक है, राकेश जी सबके साथ है। लास्ट में बोलते ना मैं आपके साथ हूँ, तो राकेश जी सबके साथ है। ठीक है सर, सो दिस कंप्लीट्स बालू फोर्ज। दूसरा कौन सा कंपनी था आपका, वो मेरे को नाम बता दो। दूसरा वो कंप्यूटर का कंपनी था ना, वो जो हम लोग देख रहे थे, सिलिकॉन रेंटल। मैं नाम भूल गया। सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशन सर। प्लीज एक मैसेज डाल दो ग्रुप में, प्लीज टैग मी सो आई रिमेम्बर। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? कंपनी का नाम डालूं? कंपनी का नाम डाल के मेरे को टैग कर दो ना सर, मेरे को फिर याद रहेगा। सर ये बालू फोर्ज का मस्त था, मजा आया। ये ऐसा अलग लेवल का झूलू है। और एक बात बताऊं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, Adi Godrej tagline is doing the same damn thing. Equity write-offs. You'll be shocked.
You will be shocked because Godrej is a very big name. Godrej is doing the same damn thing. देखना एग्जाम्पल वेरी क्विकली, इक्विटी राइट ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल सर। कैलकुलेटर है हाथ में? हाथ में तो है? नहीं है, लेकिन लेके आता हूँ। हाँ ठीक है सर, आप बोलिए। मोबाइल में ले आओ, मोबाइल में कैलकुलेटर खोल लो। ठीक है, खोल लेंगे। विजय जी, आप भी उठा लीजिए कैलकुलेटर प्लीज। सर मेरे पास है कैलकुलेटर। हाँ सर, बढ़िया सर। 2013 में 2014 में 78 करोड़ शेयर्स का 99 करोड़ शेयर्स हो गया, राइट? दे हैव डाइल्यूटेड, करेक्ट? दिख रहा है आपको? क्लियर? डोंट डू द माइनस अभी। हाउ मच दे हैव डाइल्यूटेड? वी कैन गो एंड लुक एट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग स्टफ। तो 78 करोड़ से 99 करोड़ शेयर्स हो गया। कितना पैसा उठाया पब्लिक से? 694 करोड़, राइट? ठीक है। So in 2014 what is my PAT? 236. 236 में से मैंने 25% डिविडेंड दे दिया, कितना बचा? 177 करोड़, 177 करोड़। 177 प्लस आई लिखना है क्या कहीं? ये फिगर्स कहीं लिखना है क्या? 177 आप लिखना कहीं नहीं, आप दिमाग में रख लो। 177 करोड़ इज माय रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस 694 करोड़ आई हैव टेकन फ्रॉम द पब्लिक। तो टोटल करो कितना होता है? 870। 870। तो मेरा जो 1351 का रिजर्व है, ये 870 से बढ़ना चाहिए ना। 1351 में 870 जोड़ो, कितना हो गया? मेरा यहाँ पे रिजर्व कितना आना चाहिए? 2222 2222 2000 आया कितना? 1694, मतलब 528 का शॉर्टफॉल हो गया। 528 करोड़ पे इक्विटी राइट ऑफ। कुछ ऐसा लॉस था कंपनी को जो ये नहीं दिखाना चाहता था। अगर 528 करोड़ पे आपको ये पीएनएल में दिखाता, तो ये जो 236 करोड़ आपको प्रॉफिट दिख रहा है, बेसिकली ये 3 करोड़ ये लॉस दिखता। तो स्टॉक प्राइस 500 करोड़ पे यहाँ खा गया। नेक्स्ट सर कैसे? लेकिन हाउ इज ही एबल टू डू इट? मतलब उसको दिखाना तो पड़ेगा ना। 500 करोड़ कहाँ गया? मैं बता रहा हूँ ना क्या हो रहा है यहाँ पर। What this guy is doing, he is an EPC contractor for making buildings and complexes and वो सब चीजें। तो there is a revenue। यहाँ पे रेवेन्यू क्या होता है? बहुत बड़ी एक समस्या है। आपको जब भी किसी एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे ना, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर 2 years 3 years 4 years 5 years। एक साल का तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा है नहीं, बट एक साल मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते मेरा पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट बन जाएगी, करेक्ट? तो हाउ द हेल आई कैन गेट टू माय रेवेन्यू कि मैंने कितना? तो व्हाट दे डू एज अ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। मानो मेरा 100 करोड़ का ऑर्डर है, मैंने एक साल में 15% काम कंप्लीट किया, तो माय रेवेन्यू इज हाउ मच? 15 करोड़। नाउ हु विल टेल यू कि ये कितना परसेंट तुमने काम कंप्लीट किया? मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। नहीं, मैनेजमेंट बोलेगा मैंने जितना खर्चा कर दिया, मानो मेरे को 10% प्रॉफिट है और मैंने जितना खर्चा कर दिया उसके हिसाब से मैं रेवेन्यू एस्टिमेट करूंगा। सो इन एन ईपीसी प्लेयर, स्पेशली इन दिस, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स, एक्सपेंसेस, मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट ऐसे नहीं बनता है। इसमें पीएनएल नीचे से ऊपर बनता है। मुझे प्रॉफिट क्या रखना है, इतना टैक्स होके मेरा इतना पीबीटी होगा, इतना डेप्रिसिएशन होगा, तो एवरीथिंग इज ब्लडी एस्टिमेटेड। So you don't construct your P&L from top to bottom, you construct your P&L from bottom to top, उल्टा। और वो आपकी में भी उसको 500 कहीं तो एडजस्ट करना पड़ा होगा। बता रहा हूँ सर, राकेश जी का असर आ गया। आप बोलने को दो मेरे को, बता रहा हूँ। आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। अभी इसमें क्या हुआ है? वन कंपोनेंट इज अ बिल्ड रेवेन्यू, वन कंपोनेंट इज अ अनबिल्ड रेवेन्यू, राइट? तो मैनेजमेंट बोलती है कि मैंने कुछ काम कर दिया जिसका मैंने अभी बिल नहीं बनाया है, और कुछ मैंने काम कर दिया जिसका मैंने बिल बनाया है, राइट? तो ही वाज सेइंग इन दोस पीरियड जहां इसने ये इक्विटी राइट ऑफ करा है कि देयर इज अ बिल्ड रेवेन्यू, कि इतना मेरा खर्चा हो गया, इतना मैंने पार्टी को बिल कर दिया। सपोज गोदरेज इज मेकिंग फॉर रिलायंस और जो भी बड़ी पार्टी, उसको बिल कर दिया। बाकी मेरा इतना काम हो गया है जो मैंने अभी बिल नहीं किया है, विच इज अनबिल्ड रेवेन्यू, right? No, making a complex, making a building takes time. एक दिन का काम नहीं है। What happens?
अगर आपको जो आपका कस्टमर है आपको बोलता है कि आके यार जो तो आपने काम किया दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल, आई डोंट वांट दिस क्वालिटी ऑफ वर्क, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल, प्लीज करेक्ट दिस और ब्रेक दिस और कंस्ट्रक्ट इट, इसको नया बना के दो। आप क्या करोगे? आपने खर्चा तो कर दिया, आपने एनुअल रेवेन्यू कर दिया। सो व्हाट ही डिड, एंड ही डिड दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स इन द लास्ट 10-15 years। वो रेवेन्यू जिसका उसने बिल भी नहीं बनाया है, वो उसने जाके जितना उसने क्रेडिट लॉस हुआ कि यार मैंने इतना काम कर दिया, मेरे को इतना उसको वापस सही करके देना पड़ेगा बिकॉज माय क्वालिटी वाज बैड, बिकॉज माय क्लाइंट इज नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग, ही हैड टू टेक अ राइट ऑफ। और वो राइट ऑफ लेता तो नंबर्स खराब हो जाते। राइट ऑफ कैसे लिया? हमारे जैसे होशियार लोगों से प्रेफरेंशियल डील ली और वारंट्स लिया और वहां जाके राइट ऑफ मारते हैं। ये एक बार की बात नहीं है, ये बार बार हुआ है। और ये एनुअल रिपोर्ट में अच्छे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। यहाँ 500 करोड़ गायब हो गया, देख लिया आपने? हाँ जी। राइट। नेक्स्ट टाइम इन 2019 he picked up 1000 crores proceeds from shares. I am not quoting the numbers are in front of you, annual report जाके खोलो, आपको मिल जाएगा। So 2019 what happened, my shares were 108 crores, now my shares are 115 crores. You have done a dilution, correct? So 2019 what is your PAT? 253 crores. You have given zero dividends because पैसे ही नहीं है। 253 crores plus 1000 crores of money picked up from warrants, from preferential। 1253 crore। इस प्रेफरेंशियल का और वारंट का नाम सुनते सारे जंप करने लगते हैं कि यार मुझे लेना है, मुझे लेना है। 1253 करोड़, जीरो डिविडेंड। So this should go up by 1253. It has gone up by 1253 in this case. क्या बात है, राकेश जी ने बोला कि कैलकुलेशन अच्छी है, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कितना डाइल्यूशन है? 2066। 2066। 2020 का पैट कितना है? 274। वो ऐड करो, 2340। 2340। यहाँ से यहाँ 2340 गया है। यहाँ पे भी बराबर है, 8-10 करोड़ का ही फर्क है कुछ, बाकी अदरवाइज इट इज बराबर। राइट ऑफ है। अच्छा 12 कोई बात, आगे देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं भी देख देख के बोर हो गया उसको। यहाँ कितना रेस किया? अब रेस किया 3691। 3691 में 21 का पैड कितना है? -189 करो। 3502। 3502। यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 4682। यहाँ भी ईमानदारी से किया, 2-3 करोड़ का ही घपला। क्यों सर? 4682 प्लस वो अमाउंट इतना ही आता है, 8181 नहीं आता, 8184 आता है। सुधर गया? हाँ सुधर गया? सुधर नहीं गया, यहाँ भी है, आपकी कैलकुलेशन गलत है, दिखाता हूँ। सुधर नहीं गया, ये सुधरने वाला आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा आदमी, गोदरेज नाम है इसका। आगे एनबिल्ड रेवेन्यू। स्क्रीनर पे तो सीएफओ का पैट बहुत गंदा है इसका, मतलब लास्ट 3 इयर्स में तो नेगेटिव में है ही नहीं। तो बेसिकली ये लोग आगे पीछे वाले इयर्स में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिसीवेबल्स का या राइट ऑफ सीएफओ बाय पैट में वहीं पे वो पकड़ना आ जाता है, क्योंकि भैया तुमने यहाँ बोला बेचा लेकिन पैसा तो आया ही नहीं। इसकी सारी एनुअल रिपोर्ट्स में रेवेन्यू इज एन ऑडिटर नोट। मैंने स्क्रीन शेयर बंद किया है, लेट मी फाइंड इट एट वंस एंड आई विल शो यू हाउ दे आर डूइंग इट द इक्विटी राइट ऑफ, बिकॉज इसके एक नहीं कई सारी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर है, मैंने पहले देखा हुआ। सर ये बेसिकली फिर ये ट्रेड रिसीवेबल एसेट साइड में कौन सा किधर उड़ाता है? ये ट्रेड रिसीवेबल में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं उड़ा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको बैलेंस शीट में जब उसे रिजर्व से उड़ाया तो ट्रेड रिसीवेबल में उसको कम करना ही पड़ेगा, या कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अरे क्यों करना पड़ेगा? मैंने इक्विटी में से 100 करोड़ माइनस करे और 100 करोड़ रेस कर लिए। नहीं, तो पैसा भी तो आया ना आपको, इनकमिंग कैश आया ना। वो आया और उसी को राइट ऑफ कर दिया ना। जो पैसा आया उसी को तो राइट ऑफ कर रहा हूं, और कर क्या रहा हूं, तो मेरे को क्यों करना पड़ेगा कुछ भी एडजस्टमेंट? तो आप बोल रहे हो जो पैसा आया उसी को
राइट ऑफ करके फिर बाद में रिजर्व्स में पोस्ट किया है, इसके लिए हमको वो कुछ भी डिफरेंस फर्क नहीं कैच नहीं दिखेगा। हो रहा है अनलेस यू आर डूइंग हाँ, द वे कि बाबा प्रॉफिट कितना हुआ एंड नाउ इफ आई ऐड दिस शुड हैव बीन एडेड टू द रिजर्व एंड दैट इज व्हाई यू आर हाँ, एबल टू कैच इट लाइक दैट. ओके, हाँ, गॉट इट, हाँ। गॉट इट, गॉट इट, गॉट. So shortly I will post you that detail where he is given very clearly कि मैंने ऐसा करा और मैंने ये फर्जीवाड़ा करा और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ. सर बट एज पर स्क्रीनर अभी मतलब इट इज लुकिंग ओके, उसमें कहीं अरे नहीं है सर, कैलकुलेटर खराब है आपका. सर बनिया का ये कैलकुलेटर देखो, देखो ये कितना प्रॉफिट है. एक सेकंड सर, 87. दिख नहीं रहा सर. 87 है. हाँ 87 करेक्ट है. 2018 में कुछ रेस किया है, सिर्फ 3 करोड़, हार्डली 7 + 3 90. 90 करोड़ हो गया ना. डिविडेंड कुछ दिया है 2018 में? नहीं, 0 डिविडेंड है. ठीक है, तो 2018 में मेरा 90 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए ना. 1896. हाँ खा गया ना बाकी, 700 करोड़ कम कैसे हो गया? 700 करोड़ खा कम गया, कैसे हो गया? खा गया ना बाकी पैसे. लेकिन लॉस तो हुआ नहीं, तो 700 करोड़ कहाँ गया? राइट ऑफ में गया ना, बोल तो रहा हूँ, खा गया ना बाकी पैसे. सर तो नहीं, तो इसको एंट्री तो पास करनी पड़ेगी सर. इसको कहीं तो रिजर्व में से अरे माइनस सर, करने के लिए ही हैज टू शो एक्सेप्शनल लॉस, या कहीं तो उसको दिखाना ही नहीं पड़ेगा. करनी पड़ेगी. यही तो मैजिक ऑफ इक्विटी राइट ऑफ से नहीं करनी पड़ेगी. 2018 के पीएनएल में कोई एंट्री नहीं है. यही तो जादू है. यही तो आके टेक्नो फंडा वाला बंदा फंसेगा, तभी तो हमारे जैसे लोगों को पैसा मिलेगा. नहीं सर करनी पड़ेगी. बेसिकली मतलब बेसिकली एवरी टाइम ही वांट्स टू राइट ऑफ, वो डाइल्यूशन करेगा, वहां नहीं से नहीं पैसा नहीं, जो आएगा जरूरी वो नहीं है झोल सर, करेगा. जरूरी नहीं है. एवरी टाइम वांट्स टू राइट अप वो रेगुलेशन करेगा, जरूरी नहीं है. ही विल एडजस्ट द बैलेंस शीट डायरेक्टली एंड ही विल नॉट पास दीज एंट्रीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. अगेन वन मोर थिंग, लेट्स चेक अभिषेक सर कैलकुलेटर. सर कितना प्रॉफिट है? सर एक सेकंड. 160 160, करोड़. 160. डिविडेंड जीरो. जी 160. ठीक है, डिविडेंड जीरो, डायल्यूशन जीरो. जी तो मेरे को 160 से बढ़ना चाहिए ना. हाँ जी. ये रहा, 160 से बढ़ा है क्या? कम हो गया ये तो, 147 कम हो गया. माइनस 1907 होना चाहिए था. सर तो 250 से कम हो गया है. अरे 1907 होना चाहिए था. हाँ 250 कम हो गया उल्टा. 250 कम हो गया. कम हो गया ना. अब जितना ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, स्क्रीनर भी एक, अरे स्क्रीनर भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है ना. कंप्यूटर बनाया तो इंसान ने, डायल्यूशन किया है कि नहीं किया है? किया है. तो यहाँ तो नहीं दिखा रहा डायल्यूशन प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स. प्रोग्राम तो इंसान ने बनाया ना, इंसान से तो गलती होती है ना. 2016 में क्या किया है? 12-13 स्कीम ऑफ अमेलगमेशन. चलो मर्जर वर्जर किया होगा इसलिए उसको वहां से कैश नहीं. मर्जर में एडजस्टमेंट किया है, मर्जर में एडजस्टमेंट किया है उसने. 250 करोड़ वहां निकाल दिया है. राइट ऑफ तो गया ना. हाँ. सर ये तो मतलब दिन दहाड़े चोरी है. तो जाओ ले लो. अरे तो that is why serial acquirers. अरे वारंट ले लो, प्रेफरेंशियल में पार्टिसिपेट करो कि सर किसी XYZ ने बोला इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ले लो प्रेफरेंशियल और वारंट्स. इसके लिए वो सीरियल एक्वायरर्स, दैट इज आल्सो रेड फ्लैग ना, बिकॉज बार बार एक्वायर कर रहा है और एक्वायर करके अपना सीरियल भी एक्वायरर लॉस होता है राइट ना, ऑफ करता है. वो जो सीरियल एक्वायरर होता है ना, उसकी केस स्टडी अगले सेशन में कर दूंगा. वो अलग चीज है, अभी आप कंफ्यूज मत हो. नहीं, बट वो लोग भी ऐसे ही अपना नहीं, लॉस वो एंड अलग होता झोल है. जो भी किया वो राइट ऑफ अलग करते हैं ना. वो अलग होता है, वो अलग होता है. वो बता दूंगा आपको क्या होता है. इसलिए बोल रहा हूँ फ्रॉड एनालिसिस सीरीज जाके पढ़ लो, उसमें ये सब लिखा हुआ है. पढ़ रहा हूँ अभी, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहा हूँ. मतलब तो फिर वो 2 बुक्स भी तो पढ़नी है कोटा आने से पहले, वो कब पढ़ोगे? एक बुक तो पढ़ चुका हूँ, अभी और दूसरी वो कैपिटल और रिटर्न्स और जो चालू करी है. और वो जो पॉइंट्स है वो भी तो करने, वो कब करोगे? डेली कितने से रह गए? अभिषेक जी ने तो पूरी पढ़ ली. कौन से वाले पॉइंट्स? पॉइंट 1 to 6 फिल्टर्स जो हम कर रहे हैं. हाँ, वो तो कर रहा हूँ सर, वो तो कर रहा हूँ. अभी एक साथ आपने बहुत सारा लोड दे दिया. अब मुझे लगता है कि अब सबका प्रेफरेंशियल और वारंट से थोड़ा विश्वास उठने लगा होगा.
पूरा उठ गया सर। तो सर दीप्ति मैम ने 60 लाख कमिट किया है, शी विल इन्वेस्ट। सर कमिटमेंट तो पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ कमिटमेंट तो पूरा करना ही पड़ेगा सर। वो कॉल छोड़ के बाकी हो नहीं। अच्छा है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, so this is what called equity write off, and companies like UPL, companies like Godrej Properties, these big short companies are also doing। तो लार्ज कैप्स के अंदर भी फर्जीवाड़ा होता है। फिर आप बोलो कि शेयर बाजार तो सट्टा है, मेरे ही पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर why the hell you should get returns? And a techno funda person is taught, look at the growth in the EPS, look at the profit। अरे प्रॉफिट अच्छा है, EPS बढ़ गई, शेयर ले लो, अच्छी बात है ना। जितना आप टेक्नो फंडा करोगे, जितना शौक लोगे, उतना हमारे जैसे लोगों को फायदा होगा। तो आई तो प्रमोट टेक्नो फंडा। प्लीज डू टेक्नो फंडा, प्लीज लुक एट चार्ट्स। द मोर यू प्ले ऑन चार्ट्स, द मोर यू विल बी डूइंग मिस्टेक्स, एंड मोर पीपल लाइक मी। का ईपीएस तो पागल हो गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का ईपीएस 2.2 से 16.95 हो गया। अच्छी बात है ना, जाओ ले लो ना, क्यों नहीं लेते? नहीं मेरे को नहीं लेने का, मतलब जस्ट बता रहा So the more you do, the more lazy people like me can enjoy the gains later on and have the last laugh. समझ में आया what is equity write-offs? Yes sir, it's important to do this due diligence. हर कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये चांस होता है सर। And Balu Forge is doing the same thing. And what he is writing off? जो वो ARC कंपनी को अपना रिसीवेबल बेच रहा है, उसका जो डिफरेंस वो पे कर रहा है, वो राइट ऑफ कर रहा है। और हम लोग बड़े होशियार लोग हैं यार, आशीष कचोलिया सर ने लिया हुआ है, हम जाके ले लेते हैं यार, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं पब्लिक होल्डिंग के अंदर, हम जाके ले लेते हैं। ये हो सकता है ये भी उसका वो सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट रहेगा। वो What percentage of his portfolio? What percentage of his portfolio is invested? Not even 1%. करेक्ट, Not even 1%. और उनको कोई दूसरा सेटलमेंट कैश में मिल गया, हमको क्या पता? वो थोड़ी वो बोलेगा कि मैंने एक कंपनी का 1% लिया, मेरे पोर्टफोलियो का तो आधा % भी नहीं है, उतना पैसा मेरे को कैश में आ गया, सिर्फ नेम लैंडिंग हो गया। Getting it? यस सर, थैंक यू। और सर ये सामने वो भी देखा था, एक चीज और भी नोटिस किया था, ये तो आपने तो अलग ही थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव दिखा दिया राइट ऑफ इक्विटी राइट ऑफ का। जब आप हमको मतलब एक प्रीवियस इसका आपने रेफरेंस दिया था बालू फोर्ज का, तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत जो जोडू है। दूसरा एविडेंस हमको दिखा था उसका रेम्यूनरेशन में, और उसमें 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 भी हमको दिखा था काफी इंटरेस्टिंग। मतलब उसने पता नहीं मतलब लाखों या पता नहीं कितने तो उसकी रेम्यूनरेशन है, और जबरदस्त इंक्रीज और क्या क्या कर रहा है। सर मेरे पास कभी और भी रेड फ्लैग्स है, मैंने कभी और करने बैठेंगे तो याद हो जाएगी। हमको उतने ही दिखे थे, क्योंकि हमने उतने ही देखे थे। इतना जो अभी आपने इक्विटी राइट ऑफ वाला दिखाया वो तो अलग ही है। एक चीज और बताता हूँ, आज की डेट क्या है? 16 में। लिख लो, आप आपके डायरी में लिख लो। सांघी मूवर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और मैंने टेक्नो फंडा में जान करके एक फोमो डाला है सांघी मूवर्स का 11x। आई हैव मेड 11x इन सांघी, दैट इज ओके। मैंने जान करके एक फोटो डाली है फोमो करने के लिए। आज का भाव क्या है? 1450-1500 गिर गया 1200। नहीं 1200 नहीं, 1450-1500 का भाव है। 1280 सर। 1280 सर, मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। अंदर में देखा 16% गिर गया। मैंने देखा ही नहीं। मैं एक्चुअली पहले बोलना चाह रहा था। आज की तारीख क्या है? 16 मई। 15 मई को था। अरे तारीख पूछ रहा हूँ यार। 16 सर। 16 मई 2025 तक सांघवी का जो हाई है वो भाव लौट के नहीं आएगा, जितना मर्जी टेक्नो फंडा लगा लो। जाओ लगा लो जोर। एक दिन में गिरा है, ये क्या गिरा है? रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। 140 था, आज अरे जो है वो 1280 है। किसी ने रिजल्ट अच्छा है सर एग्जिट हो गया इसलिए। नहीं, वो मैं तो हो गया एग्जिट, मेरी छोड़ो।
मैं तो 11x भी कर चुका हूँ, मैं तो इसमें नीचे खेल भी खेल चुका हूँ, मेरे छोड़ो, मैं तो हो गया एग्जिट, मेरे को तो प्राइस भी नहीं देखना। 16 मई 2024 सांघवी मूवर का जो हाई है आज का 1400 1500 जो भी है, उसके बाद तो मैंने देखा भी नहीं। आने वाले 1 साल में या 2 साल में ये भाव लौट के भी नहीं आएगा, जितना मर्जी टेक्नो फंडा लगा लो, चलो लिख लो। तो 1 साल बिजनेस के बाद चेंज कर दिया ना उन्होंने, उनका यस फोकस देयर हैज चेंज बीन है। ये बालू फोर्ज का भाई है लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसके नहीं भी नहीं सेल्स एपीसी बिजनेस में जा रहा है वो। दे आर सेइंग दैट दे वांट टू ग्रो एपीसी बिजनेस। हाँ ये गलत, ये कैपिटल एलोकेशन का इशू है इसमें उसकी यार, वजह से यस उसकी इसको वजह से इसमें कैपिटल गलत एलोकेशन जगह का पैसा इशू लगा रहा है। नहीं, इसके पास ग्रोथ एवेन्यूज नहीं बचे, ये कैपिटल एलोकेशन का इशू है। इसका जो ब्लेंडेड नंबर आएगा वो नंबर खराब आएगा। आप 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद देख लेना, आप इसमें सारी बेरिश बातें करने शुरू हो जाओगे। आज मेरा वो टेक्नो फंडा में फोमो करने का मकसद ही ये था कि जिसको मजा करना है कर लो, ये फोटो देख लो, 1 साल के बाद सब रोते फिरेंगे, बिकॉज हिज ब्लेंडेड नंबर्स आर गोइंग टू गो सबड्यूड, that will come to know after 2 to 3 quarters. And there has been tremendous amount of professional selling today, tremendous amount. You see, you want to see the results? I'll show the results. Give me 1 second. वो बड़े सारे टेलीग्राम ग्रुप होते हैं ना जो रिजल्ट्स दिखाते हैं, मैंने भी अभी देखा, कहीं देखा मैंने, ये रहेगा। I'll show you the results. Copy media, मैंने मेन ग्रुप में डाला। Now please have a look at these results. See, the sales are up, the profit is up, everything is good, the EPS is up, everything is good. दिख रहा है जी सर, दिख रहा है, सब अच्छा दिख रहा है। मतलब नहीं, सब अच्छा नहीं है। जरा एम्प्लॉय कॉस्ट देखना, बढ़ गई है सर 800 करोड़ से। क्यों बढ़ गई है? सॉरी 80 करोड़ से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, एम्प्लॉय कॉस्ट देखो 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 देखो। हाँ सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं 9 करोड़ से 15 करोड़ हो गए, 6 करोड़ से बढ़ गए हैं। ये भाई साहब एक नए बिजनेस के अंदर गए हैं, जो ये नए बिजनेस के अंदर गए हैं ना, वहां पर इनके रिटर्न रेशियोज कम है। और ये मुझे आज से नहीं, मुझे कब पता था, इनका मार्च के महीने में एक टीवी पे इंटरव्यू आया था। आपको इंटरव्यू चाहिए, मैं वो भी दे देता हूँ, 5 मिनट का इंटरव्यू सुन लो, आपको समझ आ जाएगा कि सांघवी मूवर आने वाले 1 साल में क्यों नहीं चल रहा। बट ये चीज आपको चार्ट नहीं बताने वाला। इफ यू वांट आई कैन पोस्ट यू दैट लिंक ऑफ दैट इंटरव्यू आल्सो, व्हिच इज आई थिंक ऑन CNBC और समथिंग। आपने किया था सर? यस, और आई थिंक निधि मैम उस टाइम उनसे बात हो रही थी और ये इस पर डिस्कशन हो रहा था। So I'll post you the interview. Give me 1 second. इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेकार है, लेकिन एनुअल फिर भी ठीक है, ऐसा लग रहा है ना। हाँ सर देखो, मई का मेरे को डेट भी याद है, मिल गया सर। MD at Sangvi Movers joining in on the show right now. ये भेजा Rishi, सर, hi, good morning. Good to have you. ये इंटरव्यू है, सुन लो ध्यान से। लेकिन एक बात बोलूं, बोलूं 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 हाँ जी सर। हम जब भी इंटरव्यू सुनते हैं ना, हम उसको 1.5x में सुनते हैं, हमारे को जल्दी लगी होती है, क्योंकि सबके पास एक बड़ी अच्छी चीज होती है जिसको बोलते हैं एयरपॉड्स। कोई एप्पल के होते हैं, कोई सैमसंग के होते हैं, कोई दूसरे दूसरे होते हैं, कोई वायर वाले होते हैं, कोई वायरलेस होते हैं, करेक्ट जी। I never listen to the YouTube videos. I transcribe them and read them, and that is the difference. सर आपका रीडिंग कैपेसिटी और हम लोगों की रीडिंग कैपेसिटी में जमीन आसमान का अंतर है ना सर। सर मुझे अगर ये 10 मिनट का इंटरव्यू है ना, मुझे 10 मिनट में सिर दुख जाएगा सुनने में। आई कैन रीड दिस इन 2 minutes। अच्छा, 1 घंटे का कॉन कॉल होता है ना, ये आ गया ना, देखो चैट GPT वाले आ गए। Now see, big growth ahead. JV with IPP for exchange of EPC opportunities potentially big. Increase in closing order book by 40%. Wind power segment share increase इतना हो गया, EPC इतना हो गया। Wind power total capacity utilization 82%. 80% 90% तो कैपेसिटी यूटिलाइज कर ही रहे हैं ना। आगे जो कैपेक्स कर रहा है इसमें तो कैपेसिटी बढ़ने वाली है नहीं। एक ये इंटरव्यू पूरा सुनना सर, ये तो आपने चैट GPT लगा दिया, अच्छी बात है, इसको सुनना।
ये कुछ और बिजनेस कर रहा है और उसमें मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हमारे मार्जिन कम रहेंगे हमारे इस करंट बिजनेस से, राइट? So as a disclosure, I am out of Sanghvi Movers. ठीक है, that's all for today. Any questions? सर वो ये जो रेंटल कंपनी के बारे में कल सैम जी ने बोला था ना, उधर हाँ के सर, लोग वगैरह लगते नहीं है, मेल का कोई रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। अगर किसी और ने भी ट्राई किया हो, उनको कोई मेल का रिप्लाई आया हो या कॉल आया हो तो दे कैन शेयर। पता नहीं सर, अभी तो बालू फोर्स देखिए, वो कंपनी में देखी भी नहीं अभी तक। विजय सर, यस सर बोलिए ना। सर दीपू मैम का कमिटमेंट है वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका क्या ख्याल है? सर अब रहने दो, छोड़ो ना कमिटमेंट को, क्या